Shut up and sit down. Partition of Bengal 1905 बंगाल का विभाजन सन 1905 What do you think happened in 1905? 1905 में बंगाल में क्या हुआ उससे आप क्या सोचते हैं? Curzon announced the partition of Bengal. Curzon ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की. The reason for partition was given as an attempt to improve administration. विभाजन का कारण प्रशासन में सुधार की कोशिश दिया गया. But the real aim was divide and rule. लेकिन मुख्य लक्ष्य था फूट डालो और शासन करो. The partition was done in order to create a separate state for Muslims and so introduce the poison of communalism in the country. यह विभाजन मुसलमानों को एक अलग राज्य देने के लिए किया गया जिससे देश में सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म का बीज फैलाया जा सके. However, the Indians viewed the partition as an attempt by the British to disrupt the growing national movement in Bengal and divide the Hindus and Muslims of the region. हालांकि भारतीयों ने इसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल में उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को नष्ट करने और इस क्षेत्र के हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश के रूप में देखा गया. Widespread agitation ensued in the streets and in the press. आंदोलन और गलियों में बड़े पैमाने पर फैल गया. People of different parts of India opposed the partition of Bengal all over the country. हिंदुओं और मुसलमानों ने पूरे देश में बंगाल के विभाजन का पुरजोर विरोध किया. This party opposition was carried on by organized meetings, processions, and demonstrations, etc. Hindu and Muslims tied Rakhi on each other's hand to show their unity and their protest. ये जो विद्रोह था, ये जो लोग खिलाफ हुए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स किए, प्रोसेशंस किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए. हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर अपनी एकता और विरोध का प्रदर्शन किया. The use of Swadeshi, made in our own country by our own people, goods, business, national education, and Indian languages were encouraged. स्वदेशी जो थे वो गहरे गुस्से में थे, ठीक है, और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना, वो चीज़ें जो आपके देश में बनी हो, आपके देश का व्यापार, आपके देश का राष्ट्रीय शिक्षा, आपके देश भारत देश का जो भाषा था उसको प्रोत्साहन दिया गया. The new nationalist spirit, self-reliance, self-reliance, shed the fear of repression, including imprisonment and painful torture by the British rule. अब देखिए, ध्यान से समझिएगा. स्वदेशी गहरे गुस्से से भरा और जोशीला आंदोलन था जो सबका मातृभूमि के प्रति आविर्भाव प्रेम का परिचायक था. आत्मविश्वास का यह नया राष्ट्रवादी जोश संपूर्ण भारतीय सतीश पर गिरफ्तारी, दर्दनाक यातना के साथ अंग्रेजों का दमनकारी शासन बनकर छा गया. It was Bal Gangadhar Tilak who realized the importance of boycott as a weapon that could be used to paralyze the whole British administrative machinery in India. उस समय बाल गंगाधर तिलक ने एक शस्त्र के रूप में बहिष्कार के महत्व को स्वीकार किया जिसे भारत में संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को शिथिल करने में उपयोग किया जा सकता था. The boycott and Swadeshi movements were instrumental in the establishment of Swadeshi enterprises, textile mills, banks, hosieries, tanneries,
chemical works, and insurance companies. बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन कपड़ा मिल, राष्ट्रीय बैंक, होजियरी, चमड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग और बीमा कंपनी के स्थापना में सहायक सिद्ध हुई। स्वदेशी stores were opened. स्वदेशी भंडार खोले गए. Volunteers supplied goods at the doorstep of every household. स्वयंसेवी स्वदेशी सामानों को प्रत्येक घर के दरवाजे तक पहुंचाते थे. The movement spread to all classes and groups of people. यह आंदोलन लोगों के हर एक वर्ग और सभी समूह तक फैला. Everyone, including women and children, came forward to take part. प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी हिस्सा लेने में आगे आए. The most active were school and college students. सबसे ज्यादा सक्रिय स्कूल और कॉलेज के छात्र थे. This made the British reverse the partition of Bengal and unite it in 1911. 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन वापस ले लिया और बंगाल पुनः एक हो गया. During this time, the role of radical nationalists in the Indian National Congress, who were called Garam Dal, came to be appreciated. उस समय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खासकर गरम दल की भूमिका को सराहा जाने लगा. They tried to involve people from all classes and groups, including peasants, workers, students, as well as women. उसने सभी वर्ग व सभी समुदाय के लोग, यहाँ तक कि किसानों, कामगारों, छात्रों एवं महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल करने का प्रयत्न किया. They succeeded in uniting the Indian people against a common enemy, the British. वे सबके दुश्मन अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय लोगों को एक करने में सफल रहे. The young people were roused to the highest level of patriotism and zeal of free their country. They help in making people self-confident and self-reliant. They also revived the Indian cottage industry. युवा लोग देशभक्ति के उच्चतम स्तर तक भड़क गए थे और देश को आजाद करने का जोश था. उन्होंने लोगों को आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाने में मदद की. उन्होंने भारतीय कुटीर उद्योगों को भी पुनर्जीवित किया.